Parul and Monica. सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते भाई. नमस्कार. 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 Dr. Parul and Dr. Monica, are you ready? कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. नरसिंह भगवान की जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. भय, चिंता, दुख का निवारण हो, सुख संपत्ति का वास हो, इन शुभकामनाओं के साथ आगाज आज के कार्यक्रम का. A very good morning to all of you. On behalf of Maharaja Agrasen Institute of Technology, we welcome each one of you to the 4th edition of Shri K.C. Garg Memorial National Conventional Debate. Development of holistic personality and balanced leadership are fundamental goals of new education policy, and MATE has been a leader in fulfilling its national, social, and cultural obligation thanks to the able guidance and support from our efficient management led by Dr. Nand Kishore Garg, founder chairman MATES. श्री केसी गर्ग मेमोरियल राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत अभिनंदन आप सभी का. We also extend a very warm welcome to Shri Mohan Garg ji, Shri Jagdish Mittal ji, Shri Naresh Agrawal ji, Shri B.L. Mahajan ji, Professor Neelam Sharma, Director MATE, Professor S.S. Deswal, Dean Academics MATE, Professor Rajni Dhingra Malhotra, Director MEMS, our erudite heads of departments, faculty members, participants, student organizers, and a revered and erudite audience. भारतीय समाज में औपचारिक अनौपचारिक रूप से वाद विवाद की गौरवपूर्ण परिपाटी परंपरा रही है. विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक विषयों की समीक्षा से ही भारतीय तर्कशास्त्र की परंपरा का जन्म हुआ. एक जीवंत, प्रभावशाली और पारदर्शी लोकतंत्र में असहमति, वाद विवाद और संवाद निहायत ही जरूरी है, लाजमी है. क्रियाशील, प्रभावी, विचारवान वक्ताओं का निर्माण करना आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का ध्येय है. आज का यह आयोजन समर्पित है, अर्पित है एक पिता के संस्कार को, विश्वास को, सपने को. घर की बुनियाद है पिता, मन का अबूझा एहसास है पिता, हर काम में निहित आशीष है पिता, साहस है पिता, संबल है पिता. Shri K.C. Garg was an embodiment of simplicity, profound ideology, and deep humanism. His dedication is reflected in the aura and stature of excellence achieved by his lineage. He practiced the ideology of Vasudhaiva Kutumbakam. श्री केसी गर्ग जी का जन्म 1928 में हरियाणा के गांव जसोड़ा खेड़ी में हुआ था. पढ़ने में उनकी बचपन से लालसा थी. अपने परिवार में वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे. परिवार के उकेड़ा चले जाने के बाद आपकी पढ़ाई छूट गई, पर शिक्षा के प्रचार प्रसार का सपना आपके मन मस्तिष्क में एक अटूट अप्रतिम जगह बना चुका था. श्री केसी गर्ग जी ने 1947 के विभाजन की त्रासदी का साक्षात अनुभव किया, जब उन्हें उकेड़ा से शरणार्थियों के साथ भारत आना पड़ा. मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सिर्फ अपनी हिम्मत, जिजीविषा और लगन से आपने नई शुरुआत की. आज आपकी परंपराओं को सहेजते हुए आपकी फुलवारी खूब आनंद से पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है. His tradition of benevolence, charity, and liberal thought is practiced by the members of his family in their own special and unique ways. Dr. Nand Kishore Garg, Shri Jay Kumar Garg, Shri Ishwar Garg, Shri Mohan Garg, Shri Vinod Kumar, Shrimati Satyavati, and Shrimati Umavati are the embodiment of value system, sanskar, and parampara of Shri K.C. Garg ji. आज का यह कार्यक्रम समर्पित है पिता के उस जज्बे को जो ये मार्ग प्रशस्त करता है कि उसकी संतति लोक कल्याण में परिवार का नाम रोशन करेगी, समाज का नाम रोशन करेगी. To give you more input on today's event,
we have with us our able guidance and support, Professor Neelam Sharma, Director MATE. May I take this opportunity to request ever so effervescent and proactive Professor Neelam Sharma to welcome our guests of honor and start the event. Respected Founder and Chief Advisor, Dr. Nand Kishore Garg sir, 3 times ex-MLA Delhi Vidhan Sabha and Chancellor Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, Vaddi. He is also the guiding light of all the events organized from time to time. Thank you, sir, for being there always as a strong backbone of the MATE's परिवार. हमेशा ही हर तरह के कार्यक्रम, चाहे वो सांस्कृतिक हो और चाहे वो एकेडमिक हो, सर हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं और हमेशा बहुत ही गहराई से उन सारी चीजों को पकड़ करके हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं. I welcome you, sir, today. Today we have organized Shri K.C. Garg Memorial 4th National Conventional Debate Competition in the memory of late Shri K.C. Garg ji under the guidance of Dr. Nand Kishore Garg, the eldest son of Shri K.C. Garg ji. On this occasion, I welcome all the family members, Shri Jay Kumar Garg, Shri Ishwar Garg ji, Shri Mohan Garg ji, Shri Vinod Garg ji, Shri Anand Gupta ji, Shri Vikas Garg, Shri Vishal Garg, Shri Vipul Garg, Shri Vinayak Garg, Shri Vivek Garg, Shri Vikram Garg, Shri Vaibhav Garg, Shri Deepak Garg, Shri Prakash Garg, Shri Anand Garg, Shri Satish Garg, Shri Shwet Garg. I welcome all the members, and because this is in the remembrance of Shri late K.C. Garg ji. Also, on the occasion, I welcome Shri Vineet Kumar Lohia ji, the chairman, Shri S.P. Agarwal ji, executive chairman. बहुत ही गर्व के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच श्री जगदीश मित्तल जी भी भोपाल से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अभी उनसे हम लोग वार्तालाप कर रहे थे. और मोहन गर्ग सर तो हैं ही हमारे बीच, नरेश अग्रवाल जी भी हैं और श्री रजनीश गुप्ता जी भी बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेंगे. I would also like to welcome the source of motivation for organizing this event year after year. हर साल 2 महीने पहले से ही BL महाजन सर हम लोगों की टीम के पीछे लग जाते हैं कि भाई अभी तुम लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया, अभी तुम लोगों ने ये बनाया कि नहीं बनाया, पोस्टर बनाया कि नहीं बनाया. हमेशा ही वो हमारे पीछे लग जाते हैं कि इस इवेंट को करना है, अच्छे से करना है, खूब पैसे लो, कितने पैसे किसको दे रहे हो, क्या कर रहे हो, जजेस को क्या दे रहे हो. So he is always, whenever he comes to the institute, he is always motivating us to organize this event successfully. Normally हम लोग February में इस event को कर लेते हैं, मगर इस बार because of certain dates को कुछ मतलब हमारा session भी delay चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस बार ये delay हो गया हमारा debate competition. और ये debate competition में हम लोग online इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लास्ट ईयर हमारे पास जब हमने ऑनलाइन कोविड के टाइम में किया था तो हमारे पास बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया से आई थी. इनफैक्ट लास्ट के जो हमारे विनर्स भी थे वो भी बैंगलोर की एक लड़की थी और मैसूर की एक बच्ची थी जिन्होंने विन भी किया था, उसने 2nd प्राइज और कंसोलेशन प्राइज लिया था. तो हमारी काफी पार्टिसिपेशन आने लगी, तो फिर हमने सोचा कि इसको ऑनलाइन करते हैं एक इवेंट ताकि हमारे पास पार्टिसिपेशन आए. और अच्छी बात यह है कि इस बार भी वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से हमारे पास पार्टिसिपेशन है, मध्य प्रदेश से हमारे पास पार्टिसिपेशन है, तमिलनाडु से हमारे पास पार्टिसिपेशन है और दिल्ली एनसीआर से तो हमारे पास बहुत सारी पार्टिसिपेशन है. तो इसलिए हमने कहा कि इस इवेंट को हम लोग ऑनलाइन करते हैं सो दैट सब लोग इसको सुन पाए और केसी गर्ग जी के नाम से सब लोग जान पाए कि हमारे कॉलेज में वो उनका क्या स्थान था. तो इसलिए हमने इस कंपटीशन को ऑनलाइन मोड में ही कराने का सोचा. I also welcome Professor S.K. Garg sir, Director General MEMS, Professor Rajni Dhingra Malhotra, Director MEMS. रजनी जी भी हमारे बीच हैं, विनीता जी भी हैं हमारे बीच, तो वेलकम टू हर ऑल्सो. डॉक्टर संजीव मारवा, डॉक्टर अपर्णा महाजन, डायरेक्टर इंजीनियरिंग फ्रॉम बद्दी has also joined in. I just got a message, so she has also joined in. Dr. S.S. Deswal,
Shri J.R.M. Tripathi, all the heads of the department, faculty members of Made Parivar, and students from all over India who have joined this competition and who are going to be a part of this competition. तो इस कंपटीशन में लगभग हमारे पास 300 एंट्रीज आई थी। तो फर्स्ट राउंड में हमने उन 300 एंट्रीज में मतलब उन 300 एंट्रीज में से हम लोगों ने 85 एंट्रीज को सिलेक्ट किया। उन 85 एंट्रीज की हम लोगों ने वीडियो क्लिप्स मंगाई और उन वीडियो क्लिप्स के जरिए फिर हम लोगों ने उसमें से 20 एंट्रीज इन हिंदी एंड 20 एंट्रीज इन इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, जिसकी की जजमेंट आज फिजिकल रूप में आज 1 to 1 की जजमेंट हो रही है। और ये सभी बच्चे मतलब दोनों ही जो हिंदी और इंग्लिश के डिबेट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बोलेंगे और उसमें से जो बेस्ट है, हमारी टीम ऑफ जजेस भी बहुत बढ़िया है। जो हमारी हिंदी के टीम ऑफ जजेस हैं वो हैं डॉक्टर के.सी. त्रिपाठी, डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी, डॉक्टर उमेश पाठक और दीपायन मुखर्जी। जो दीपायन मुखर्जी हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे साथ ये स्टार्ट किया था 4 साल पहले, तो अभी तक वो हमारे साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, आज भी है, एंड ही इज वन ऑफ द जजेस फॉर द हिंदी कंपटीशन। एंड फॉर द इंग्लिश कंपटीशन वी हैव प्रोफेसर शिखा सक्सेना, डॉक्टर श्वेता शर्मा एंड डॉक्टर शालिनी मिश्रा। तो ये लोग हमारे कॉम्पिटिशन्स के जजेस हैं। And the list of colleges from the Delhi NCR who are participating are Avdesh Pratap Singh University, Janki Devi Memorial College, Shivaji College, Delhi College of Arts and Commerce, Motilal Nehru College, Maharaja Agrisen Institute of Technology and Maharaja Agrisen Institute of Management Studies, Hansraj College, Gargi College, Maharaja Surajmal Institute, Maharaja Agrisen University, Baddi, then Bhagwan Parsuram Institute of Technology, Panipat Institute of Engineering and Technology, Miranda House College, Atma Ram Satnam Dhamma College. So these are all the colleges जहाँ के बच्चों ने participate किया है. And of course, apart from this, as I already told you, we have received participation from Madhya Pradesh, from Himachal Pradesh, of course, from Baddi, Haryana, and Tamil Nadu and Calcutta. So these are all the participating institutes from all India. Debates are an integral part of students' overall personality and development. Debates give us confidence to speak in the public. It teaches students how to construct logical argument and build a case in a defense of your own perspective. तो वाद विवाद प्रतियोगिता से बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, टॉपिक के ऊपर विचार प्रकट होते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पब्लिक एक जगह गुट होकर के बनती है। तो इसलिए वाद विवाद प्रतियोगिता को हमें बहुत महत्व देना चाहिए। So I thank you all for a patient hearing and thank you, and once again welcome to this event. Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for your all-time support and guidance. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग हम सभी के लिए गुरु स्वरूप हैं और इसीलिए हम उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हमें नित्य नई मंजिलों को छूने की प्रेरणा देता है। आप हमारी संस्था की ऊर्जा शक्ति हैं। हमारी संस्था के मार्गदर्शक होने के नाते तथा स्वर्गीय श्री के.सी. गर्ग जी के सबसे बड़े सुपुत्र होने के नाते तथा एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने शिक्षा की अखंड अलख जगाई है, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे छात्रों को मार्गदर्शन करें। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
अनम्यूट कर। नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, जी सर, हम आपको जी सुन सर, पा रहे हैं आपकी सर। आवाज आ रही है। आ रही है सर। महाजन सर को प्रणाम, नीलम जी, परिवार के सदस्य जगदीश मित्तल जी, एसके गर्ग जी, और जो भी इस कार्यक्रम से आयोजन में जुड़े हुए और पार्टिसिपेंट्स, उनको सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि मेरे पिता समान श्री महाजन जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम लगभग 15-16 साल से पहले स्कूल लेवल पर शुरू हुआ मुंडका में। उसमें भी 2 अलग अलग जूनियर और सीनियर का था, और पिछले आज चौथा वर्ष है कि ये जिसको नेशनल लेवल का कार्यक्रम हो गया है। सारी चीजें नीलम जी ने, पारुल जी ने और अभी बताई, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का महत्व बताया। हम भी कभी जब विद्यार्थी थे, और जिनके विद्यार्थी थे वो सम्मुख बैठे हैं, हमारे पिताजी हमें उन दिनों में दुकानें सुबह 6 बजे खुलती थी, 9-10 बजे तक खुली रहती थी, उसके बाद भी रात को हमें थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे। और वो पहाड़े इत्यादि जो व्यापार के लिए आवश्यक थे, चौथाई का पौवा, आधा, पौना, सब इस ढंग की चीजें बात करते करते रात को 15-20 मिनट में पढ़ा देते थे। उन दिनों में ना कोई ट्यूशन का रिवाज था, तो अध्यापक ही माता पिता का रोल भी करते थे। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को 5वीं के अंदर भी स्कॉलरशिप दिल्ली के अंदर जब गिने चुने मिलते थे, 4 रुपये महीने का मिला, और पिताजी को बहुत प्रसन्नता होती थी जब कोई पढ़ने में आगे निकले। उनकी ही मैं समझता हूँ ये इच्छा थी कि मेरी बहन ने पूरे देश में कॉमर्स ग्रुप में उस विद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त किया, और मैं अपने साइंस ग्रुप का था, पहला बैच था, उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन तो ले ली, परंतु स्कूल वाले मुझे मेरिट में सोचते थे, जो नहीं हुआ। इच्छा थी मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं, उसीलिए मैंने एमएससी की, परंतु कुछ इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करता और बदले में दूसरी कई चीजें पूरी करता है। तो आज वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 12वीं तक का स्कूल जो गीता विद्यालय है, जहाँ से ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी गैस इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, उसका प्रबंधक, चेयरमैन इत्यादि बनने का अवसर मिला। वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर हमारे जमाने में उस समय डॉक्टर स्वामी, जो आजकल तो बड़े हो गए, उस समय आए थे हार्वर्ड से पढ़कर, और उस समय एक वाद विवाद प्रतियोगिता हमारे स्कूल ने भी की थी कि भारत को एटम बम बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। फिर पंचवर्षीय योजना पे हुई कि स्वदेशी योजना का, तो ये सब चीजों से हमें भी कुछ सीखने का अवसर मिला। और देश के अंदर जितने बड़े नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो मैं जानता हूँ, वो सब अच्छे डिबेटर थे, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, चाहे ओपी कोहली जी हो, विजय कुमार मल्होत्रा हो, अपने अपने समय में अजय माकन हो, ये सब लोग पढ़ाई के साथ साथ इन एक्टिविटीज के कारण आगे निकले। उसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे पिताजी या बाबा जी ने गांव में हमारी जो अपनी अग्रवाल धर्मशाला थी, काफी बड़ी, वो कन्या स्कूल भी खुले, तो हमारे परिवार के पूर्वजों ने वो दान में दिए, और वहां स्कूल सरकार ने चलाया बहुत दिन। ये सब हो पाए इसलिए कि शिक्षा के प्रति रुझान हमारे परिवार का था, परंतु विभाजन के कारण सब कुछ छोड़ के जब वापिस आना पड़ा इस साइड पर, उसके कारण पहले 5-7 साल हमें प्रैक्टिकली जो आज की झुग्गी झोंपड़ी बोलते हैं उस प्रकार का जीवन जीना पड़ा। विकल्प में सरकार ने बना के दिया, तिलक नगर में दुकानें नहीं चली, परंतु शिक्षा का महत्व हमें समझ में आ गया, और इसीलिए आज भगवान की कृपा से स्वयं पढ़ाई अच्छी करके परिवार के लोग बच्चों को पढ़ाकर उस स्कूल का भी नाम ऊंचा हुआ जिसमें हम पढ़े, और उस स्कूल के कारण हम आगे बढ़े। और आज एक समय था 1968 से और 1987 तक दिल्ली की आधी मेरिट एक विद्यालय देता हो, और उस विद्यालय का नाम आज भी लोग ढंग से ना ले पाते, या तो विद्या मंदिर के नाम से जानते हो या
स्वतंत्र भारत मिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 500-700 डॉक्टर दिए उस दौरान दिल्ली के लोगों को, हजारों सीए दिए, और सभी स्ट्रीम, और छोटा स्कूल। उसी मॉडल को लेके हमने गीता स्कूल चलाया, और आज पूरे देश में 1.25 लाख एकल विद्यालय चलते हैं। पूरे देश में 30,000 विद्या भारती के स्कूल चलते हैं। वो सब के सब एक ही एम को लेके चल रहे हैं कि देश को कैसे सबसे आगे लेके जाना है। और विद्या ही वो चीज है जो आगे ले जा सकती है, विद्या ही है जो विमुक्त करती है। विद्या और शिक्षा और एजुकेशन में जो फर्क है वो भी धीरे धीरे आपके समझ में आते होंगे, आने भी चाहिए। और आज उसी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई जो बनी, जिसके माध्यम से आने वाला, मैं समझता हूँ 10 साल के अंदर हम इस देश के अंदर जो रिफॉर्म पेंडिंग थे एजुकेशन के अंदर जुडिशियल के कारण, वो सब भी होंगे। और हम बहुत तेजी से अभी जो 12वें स्थान से 5वें पे आए हैं, और थोड़े ही दिन बाद 3 साल में ही हम तीसरे नंबर पर होंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हम 1 नंबर पर होना है, और उसमें हमने अपना कंट्रीब्यूशन देना है। महाराजा अग्रसेन परिवार उस अच्छे काम में लगा हुआ है, और आज लगभग जो 40 बालक बालिकाएं पार्टिसिपेट करेंगे इस बहस में, 20-20 का भी बताया जैसे, तो बहुत अच्छे उसके अंदर हमें वो मिलेगा। बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी उनके माता पिता, उनके गुरुजन भी लगे होंगे, और पूरी ईमानदारी से हमारे जो जजेस हैं वो इसके अंदर उनको, जिसका भी प्रथम द्वितीय तृतीय आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हम पारितोषिक देंगे। विषय बहुत सामायिक हैं, इन विषय का गहन अध्ययन ये बच्चों ने तो किया ही है जो आज सुनेंगे, बाकी लोग भी उनका अध्ययन बढ़ाएं। अध्ययन जितना बढ़ाएंगे, पढ़ने की आदत हमारी जो समाप्त होगी इस देश में, और सारा कुछ केवल इलेक्ट्रॉनिक उस पर आ गया, वो भी धीरे धीरे मैं समझता हूँ फिर से बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छी सुविधाएं मिली उनको प्राप्त करते हुए भी, किताबों का सब्स्टिट्यूट अभी कोई नहीं हो सकता, अध्यापक का सब्स्टिट्यूट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अध्यापक केवल अक्षर ज्ञान नहीं देता, केवल पढ़ाता नहीं है, वो अपने आचरण से हमें जो कुछ सिखाता है, जो अपने व्यक्तित्व से हमें उनसे मिलता है, वो तो आमने सामने ही मिलेगा। इसलिए आज जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने सहभागी हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे मन से 300 में से छठ के 40 पे आप आए, और इन्हीं में से 6 लोग निश्चित तौर पर छठ जाएंगे आज शाम तक। और आगे इसका और अधिक विस्तार हो सकता है, और अधिक इसका करेंगे तो हमारे जो भी इस काम में नीलम जी, रजनी जी, संजीव मरवा जी, आर.के. गुप्ता जी, हिमाचल बद्दी से हमारे वाइस चांसलर साहब, और हमारे इन सबसे ज्यादा रुचि लेने वाले इन कार्यक्रमों में जगदीश मित्तल जी, मोहन गर्ग जी, उनकी रुचि रहती है इन सारे चीजों में। इसीलिए आज भोपाल से भी वो स्वयं जुड़े हुए हैं। कल दिल्ली के अंदर बहुत बड़े कार्यक्रम में थे, भोपाल भी जा चुके हैं, और इसमें भी जुड़े हुए थे। इससे सिद्ध करता है कि कितने आदमी के अंदर लगन हो, निष्ठा हो, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं महाजन जी और आप सबको नमस्ते करते हुए आशा करता हूँ कि आज के इस ज्ञानवर्धक प्रोग्राम से हमको सीखने को सबको ही कुछ अवश्य मिलेगा। और मैं भी 3-4 तो अभी सुनूंगा, और बाकी बात में सब सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन से जुड़े अनुभव, यथार्थ से जुड़ाव आपकी परंपराओं को पल्लवित करता है। आपने अपने पिता के शिक्षा के प्रचार प्रसार के सपने को बखूबी अंजाम दिया है। आपका मार्गदर्शन हम सभी को सत्य, विद्या, संस्कारों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद सर। Everybody is now requested to take a group photograph. Kindly switch on your cameras for a group photograph. सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। We will take a group photograph.
I request the technical team to give a green signal once it is done. Done. Thank you. The photograph is done. Thank you. Thank you each one of you. Thank you. हमारे बीच श्री आर.के. गुप्ता जी भी मौजूद हैं. सर स्वागत अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में. Now I hand over the stage to our students Aman and Vanshika for further proceedings. All the best to the Literary Society and the organizing team for the debate. All the best to all the participants as well. Aman and Vanshika, am I audible to you? Are you there? Okay, yes, they are there with us.